نور عین فاطمہ امام علی مقام سیدنا سرکار امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کو شہید ہوئے کتنے دن ہوئے؟ تو بچے کو پتا ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عراق کے کربلا کے میدان میں امام علی مقام کی شہادت ہوئی، امام علی مقام کے بچوں کی شہادت ہوئی، امام علی مقام کے گھر والوں پہ پانی بند کیا گیا، ان کا کھانا بند کیا گیا، حضرت سکینہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اہل بیت اطہار کو ستایا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 1445 ہجری کا ذی قعدہ کا مہینہ ہے، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 10-20 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ 1445 سے آپ 61 کو نکالیں گے 1384 سال بنتے ہیں۔ 1384 سال ہو گئے امام علی مقام حضرت امام حسین کو شہید ہوئے، 1-2 دن پہلے کی بات نہیں ہے، 1384 سال ہو گئے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب ہم نام حسین ہمارے لبوں پہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام حسین کے خون کی سرخی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ جیسے ہی ہم نے یا حسین کہا، ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی اصغر مولا حسین کی گود میں اس وقت موجود ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا حسین، ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اکبر جیسے جوان بیٹے کی لاش کو اپنی گود میں لیا ہے اور خیمہ کے سامنے آ کر لٹا دیا ہے۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا حسین، مہینہ رجب کا ہو، یا حسین کا نعرہ ہماری زبان پہ ہے، مہینہ رمضان کا ہے، یا حسین کا نعرہ ہماری زبان پہ ہے، مہینہ ربیع الاول ہو ربیع الاخر ہو، جمادی الاولی ہو یا جمادی الاخری ہو، ذی الحجہ ہو یا ذی قعدہ ہو، لیکن یا حسین یا حسین، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے، عورتوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے، بچوں کی زبان پہ حسین کا نام زندہ ہے۔ غلام غوث قادری آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہے، 1-2 دن پہلے کی بات نہیں ہے میرے دوستو، میرا باپ انتقال کر جائے یا میرے پردادا یا دادا انتقال کر جائیں، ہمارے پوتے کو خبر نہیں ہے، کتنے دن ہم یاد کریں گے؟ یار 10-20 سال یاد کر لیں گے، 100 سال یاد کر لیں گے، کوئی 100 سال یاد نہیں کرتا۔ یہ سیٹی کی آواز بھائی جان نہیں آئے، بہت اچھا مائک مجھے ملا ہے ماشاءاللہ، مائک کا تو جواب نہیں ہے، اس سیزن کا سب سے ٹاپ اینڈ سپر مائک۔ اللہ ہمارے بھائی کو سلامت رکھے اور چینل والے بھی سلامت رہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 100 سال آپ اپنے پردادا کو یاد نہیں رکھتے، اتنے سارے لوگ موجود ہیں، اس میں سے کوئی بتائے پردادا کے ابا کا نام، ذرا کوئی بتائے، یا آپ کے پردادا کے جو ابا تھے ان کو انتقال کیے ہوئے کتنے دن ہوا اور وہ کب انتقال کیے تھے؟ لیکن کیا بات ہے تحسین صاحب قبلہ کہ امام حسین کو شہید ہوئے 1384 سال، 1384 سال ہو گئے۔ لیکن چھوڑو محرم کی 1 تاریخ کو، یار مہینہ ذی قعدہ کا ہے لیکن ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ ذی الحجہ کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ رمضان کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے، مہینہ رجب کا ہے ذکر امام حسین کا ہو رہا ہے۔ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ پوری دنیا کو یہ پیغام میں نشر کرتا ہوں کہ دنیا والوں سنو، ارے ہم کیوں نہ مولا حسین کو یاد کریں، ہر لمحہ حسین حسین کہیں گے، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی حسین 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 کے نعرے ہوں گے، ہر وقت یا حسین، میرا بیٹا بولے گا یا حسین، میری 3 سال کی بیٹی بولے گی یا حسین، 1.5 سال کا بچہ بولے گا یا حسین، گھر کی بوڑھی خواتین بولیں گی یا حسین، ہر گلی سے صدا آئے گی یا حسین یا حسین یا حسین۔ یار ابھی تو مسلمانوں کے گھر سے صدا آ رہی ہے، آنے والا وقت قریب ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، حسین ہمارے ہیں، کوئی دھرم ہوگا لیکن کہے گا حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں۔ یا حسین یا حسین، میری مائیں میری بیٹیاں میری بہنیں بھی ذرا سنیں گے، ابھی میں آؤں گا حسین بیٹے کس کے ہیں، حسین کی رگوں میں، امام حسین کی رگوں میں کس ماں کا خون دوڑ رہا تھا، آج میری ماں کی کیا حالت ہے، قوم کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، قوم کی ماں کہاں جا رہی ہے، میری بہنوں کی حالت کہاں ہے، میری بیٹیاں میری مائیں میری بہنیں آ گئی ہیں، میری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی، کوئی میں انگریزی اور عربی اور بہت زیادہ ہارڈ اردو استعمال نہیں کروں گا، میں آپ کے لیول سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بیٹی کسی کو ہو، میری بیٹی ہے،
वो बहन कोई है, फातिमा नाम है, मेरी बहन है, आयशा है मेरी बहन है, और रेहाना है मेरी बहन है। जिस बहन ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो मेरी बेटी और मेरी बहन है। उम्र ज़्यादा है वो मेरी माँ की उम्र की है, मेरी माँ है। इसलिए मैं माँओं के कदमों के धूल को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। वो मेरी अपनी माँ, जिस माँ के पेट में मैं 9 महीने तक था और जिस माँ का दूध मैंने 2 साल तक पिया, वो मेरी माँ जहाँ रहे सलामत रहे, माँ को अल्लाह लंबी उम्र दे। लेकिन आप भी में बहुत सारी ख़वातीन जो मेरी माँ की उम्र की हैं, मेरी बेटी, मेरी बहन और मेरी माँ इस वक्त मौजूद हैं और आप हजरात भी मौजूद हैं। हर वक्त या हुसैन या हुसैन, ये इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये जरूरी नहीं है कि 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिक्र हुसैन हो। जिक्र शहीद करबला तारीख और दिन का मोहताज नहीं है। सीरत इमाम हुसैन किसी लम्हे की मोहताज ये सीरत तैयबा मौला हुसैन की नहीं है। हुसैन हैं कौन और हुसैन की शहादत का रिश्ता किससे है? तो साजिद बाबू जरा सुनिएगा आप भी और तमाम लोग हजरात भी सुनेंगे। अर्ज ये करना है आपसे क़यामुद्दीन भाई, आज सवाल ये पैदा होता है 1384 साल हो गए गोपालगंज के बड़का गांव के लोहिया नगर में बैठ के यहाँ के बच्चे बच्चे जिक्र शहीद करबला की महफिल को मुनक्किद किया है लोगों ने और इमाम हुसैन का नारा हम बुलंद कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? 1384 साल हो गए यार। 100 साल में लोग भूल जाते हैं किसी चीज को, लेकिन 13 सदियों के दरवाजे पे बैठे हैं और ऐसा लगता है करबला अभी अभी हुआ है। ऐसा लगता है कि अली अकबर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है अली असगर अभी शहीद हुए हैं। ऐसा लगता है हजरत अली असगर पानी के लिए अभी तड़प रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब्बास अलमदार के बाजू अभी कटे हैं। ऐसा लगता है कि सैयदा सकीना अपने बाबा हुसैन के घोड़े के कदमों को पकड़ के रोक रही हैं। ऐसा लगता है कि करबला में और कूफा में और दिमश्क में सैयदा ज़ैनब की आवाज अभी गूंज रही है। मैं पूछना ये चाहता हूँ वजह क्या है अफजल भाई? तो अब मैं बताना ये चाहता हूँ वजह एक है, सिर्फ वजह एक है। दुनिया वालों, दुनिया में बहुत सारी कुर्बानियां हुई, बहुत सारी शहादतें हुई, याद करते हैं लोग, उसे भुला देते हैं। लेकिन हुसैन आज भी जिंदा, हुसैन कल भी जिंदा, हुसैन कयामत तक जिंदा। इसलिए हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक इसलिए इमाम हुसैन जिंदा रहेंगे कि इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। अब गुलाम गौस कादरी को कह लेने दो, जब लगा लेने भाई। आप आइए, टेक लगाइए, मत लगाइए तो टेक आइए। जनाब सद्दाम बाबू करीब आइए, आप ही लोग तो सब आइए। गौसी हटा कि हमारे भाईजान इधर आइए। माशाल्लाह, आप चाचा जान दुआ दे दीजिए, आप दुआ दे दीजिए। सफेद दाढ़ी आपकी माशाल्लाह, माशाल्लाह। इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है माशाल्लाह। बात ये, अरे आशिक़े हुसैन माशाल्लाह, मुबारक हो। आइए चाचा जान माशाल्लाह। मास्टर साहब माशाल्लाह, अल्लाह हमारे चाचा जान को सलामत रखे माशाल्लाह। जेब से दाद नहीं, मुंह से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आपकी दुआ की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि आपने लोहिया नगर में, और रात के अभी 1 बजने को, ये 12:35 हो चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में नींद नहीं है। मेरी बहन अभी इस वक्त बेदार है, मेरी माएँ बेदार हैं, आप हजरात जग रहे हैं। वजह क्या है? तो मुझे कहने दीजिए कि इमाम हुसैन की शहादत का रिश्ता चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से है यार। कैसे कोई जिक्र हुसैन को मिटाएगा? कैसे कोई जिक्र शहीद करबला को खत्म करेगा? जब तक इस दुनिया में ये कलमा मौजूद रहेगा, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा, हुसैन की शहादत जिंदा रहेगी, हुसैन की कुर्बानी जिंदा रहेगी। माशाल्लाह अहमद रजा भाई, हुसैन जिंदा है हमारी आहों में, हुसैन जिंदा है माशाल्लाह। चचा जान के तोहफा को अलग रखिए। हुसैन जिंदा है हमारे फिक्र ख्याल में, हुसैन जिंदा है हमारी निजी मजलिसों में। और ऐसा लगता है 1384 साल हो गए, 13 सदियां बीत गईं, लेकिन ऐसा लगता है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर वक्त दास्तान हुसैन, शमशीर भाई दास्तान हुसैन, दास्तान हुसैन, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और क्यों ना हो कि जिक्र हुसैन जिक्र मुस्तफ़ा है। हुसैन को
देखना मुस्तफ़ा का देखना, हुसैन को के दस्तबोसी करना, हुसैन की दस्तबोसी कोई करे गोया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दस्तबोसी कर रहा है। ये कौन मौला हुसैन है? मेरी गुफ्तगू सिर्फ इमाम हुसैन के इर्द गिर्द घूमेगी। आइए हम इमाम हुसैन को टच करते हैं। हमारे आका हैं हुसैन, और जैसा लगता है ऐसा लगता है क़यामुद्दीन भाई, जब जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं हमारी रगों में खून फड़कने लगता है। और साहब इमाम हुसैन की मोहब्बत को कौन बंदा है भाई दुनिया में, किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत को हमारे सीने से निकाल दे या हमारे दिल से निकाल दे। यार इमाम हुसैन की मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में मेरी माँ ने पिलाया है, और हम जिंदा हैं तो हुसैनी बनके, मरे तो हुसैनी बनके, और कल क़यामत के दिन भी उठे तो हुसैनी बनके, ताकि मौला हुसैन आगे आगे हो और पीछे पीछे हम भी चलें, ताकि हम भी कहें कि हुसैन के गुलाम हम हैं, माँ का हुसैन के गुलाम हैं। करबला के मैदान में जिन लोगों ने इमाम हुसैन की मुखालफत की थी और जो मुकाबले में थे, किस मुंह से क़यामत के दिन हुसैन के नाना का सामना करेंगे? किस मुंह से वो उम्मीद रखेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उनकी शफाअत कराएंगे? अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, कौन इमाम हुसैन? नबी के नवासे इमाम हुसैन, सबको पता है ना कौन इमाम हुसैन भाई? हमारे आइडियल, हमारे हीरो इमाम हुसैन, हमारे रोल मॉडल इमाम हुसैन। कौन इमाम हुसैन? हजरत अली के बेटे इमाम हुसैन। कौन? मौला अली, मौला अली मुश्किल कुशा, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब, मजहरुल अजाइब वल गराइब, सैयदना सरकार मौला मुश्किल कुशा, अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा। कौन अली? जरा हुसैन के बाबा को देखिए, कौन अली के हिजरत की रात बिस्तरे रसूल पे सोने की बात आए तो हजरत अली उस बिस्तर पे आराम करें। कौन अली साहब कि जिनके बारे में मुस्तफ़ा फरमाएं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। कौन अली? कौन अली? दामाद रसूल अली है। कौन अली? अल्लाह अकबर। कौन अली? हमारी जान अली है, हमारा ईमान अली है। कौन अली कि जिनके चेहरे को देखना इबादत है, वो अली है। मौला अली मुश्किल कुशा हैं, हमारे मुश्किल कुशा अली हैं। मौलाए कायनात अली है, वलियों के सरदार अली हैं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनके बेटे मौला हुसैन हैं, हजरत इमाम हुसैन। हुसैन की अम्मी जान कौन है? नबी की आंखों का तारा फातिमतुज़ ज़हरा। कौन? फातिमा। मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर फातिमा, नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन फातिमा, इमामुल ये अव्वलीन वल आखिरीन की बेटी फातिमा। कौन? फातिमा। सैयदा तैयबा ताहिरा, राकिया जाहिदा ज़ाहिरा फातिमा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मेरे इमाम ने कहा ना कि सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत फातिमा के बेटे हजरत हुसैन हैं। फातिमतुज़ ज़हरा के बड़े बेटे इमाम हुसैन, लेकिन हजरत इमाम हसन हैं, और छोटे बेटे और एक बेटे जैसा कि जिक्र किया हमारे भाई ने हजरत मोहसिन, लेकिन हम हजरत हुसैन चूंकि आज हमारे मौजू हैं, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला इमाम हुसैन, राकिब दोष मुस्तफ़ा इमाम हुसैन, ये जब पैदा हुए हैं, अभी इनकी पैदाइश नहीं हुई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु, जरा गौर से सुनेंगी मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी सुनेंगी, और आप हजरात भी सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस हैं। उम्मुल फजल बिनते हारिस ये हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हैं, रिश्ते में मेरे आका की चची हैं। इन्होंने ख्वाब में देखा। क्या ख्वाब देखती हैं? जरा सुनिएगा। ख्वाब बड़ा डरावना है, ख्वाब बड़ा भयानक है। इन्होंने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया है और मेरी गोद में दिया गया। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस उठ जाती हैं नींद से, रोने लगती हैं, घबरा गई। या अल्लाह, मैंने कैसा ख्वाब देख लिया, ये तो बड़ा भयानक ख्वाब है, ये तो बड़ा डरावना ख्वाब है। उम्मुल फजल बिनते हारिस जब सुबह हुई हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाई, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने एक बड़ा डरावना ख्वाब देखा है, एक बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। आका करीम ने इरशाद फरमाया, चची जान आप ख्वाब बताएं जभी तो ताबीर बताऊंगा। लेकिन हुजूर को ख्वाब भी पता है, हुजूर को ताबीर भी पता है, लेकिन बात चुके चची की है। आका मुस्कुराने लगे, कहा उम्मुल फजल आप बताइए तो आपने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत सैयदा उम्मुल फजल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, बयान करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किए देती हूँ। मैंने ख्वाब ये देखा कि आपके जिस्म से गोश्त का एक लोथड़ा काटा गया और उसे मेरी गोद में दे दिया गया। आका मुस्कुराने लगे। हुजूर ने फरमाया, चची आपको मुबारक हो, फातिमा को एक बेटा पैदा होगा जिसे आपकी गोद में दिया जाएगा। चुनांचे चंद दिनों के बाद हजरत हुसैन
हुसैन पैदा हुए, उम्मुल फजल बिनत हारिस की गोद में हजरत फातिमा ने उनको दिया है। अल्लाहु अकबर। जब इमाम हुसैन पैदा हुए 5 शाबानुल मुअज्जम 4 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। जब हुजूर को खबर दी गई, मेरे आका तशरीफ लाए, आने के बाद गोद में अपने नवासे हुसैन को लिया है और आपने इमाम हुसैन की तहनीक फरमाई है। यानी इमाम हुसैन के शकम में अगर पहली चीज कोई चीज उनके शकम में गई है तो हुजूर का लुआबे दहन गया है। मेरे आका ने खजूर को चबाया था और चबा के हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला। हजरत इमाम हुसैन उसे अपने आप ने अपने हलक से नीचे उतार लिया। इसको तहनीक कहते हैं। और इमाम हुसैन को हुजूर ने गोद में लिया। आप कान में अजान देते हैं, यानी इमाम हुसैन पैदा हुए हैं तो सबसे पहले अपने नाना जान की आवाज को सुना है और तकबीर की आवाज वो बुलंद कर रहा है कि अल्लाह अकबर, जो वजह वजूदे कायनात है, जो सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, मेरे आका ऐलान कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के कान में अजान पढ़ा, दाहिने कान में, और बाएं कान में तकबीर पढ़ी है। और उसके बाद जब 7 दिन हो गए तो 7वें रोज नाम हुसैन रखा और अपने बेटे अपने नवासे इमाम हुसैन का अकीका फरमाया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब यहीं पे ठहर जाइए, एक बड़ी हिम्मत की बात करने जा रहा हूँ। मेरी बेटियां भी सुनेंगी और मेरी माएँ भी सुनेंगी और आप हजरात भी दुआ देंगे। आप हजरात की भी तवज्जो चाहूंगा। चाचा आप भी सुने और दुआओं से नवाजिएगा। अफजल भाई जरा सुनिएगा, आप हजरात की भी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान जो इधर उधर घूम रहे थे उसमें से 4-5 लोग आकर बैठ गए। अल्लाह का फजल है, अल्लाह चूंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। साहब मैं अपने बाप की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो हुसैन पाक की बात कर रहा हूँ, इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ, शहीद करबला की बात हो रही है, सैयदुश शुहदा का जिक्र हो रहा है। आइए जरा देखिएगा, आज हमारा बेटा या हमारी बेटी, हमारे घर की क्या हालत है। छोटे छोटे बच्चे हमारी बात को नहीं मानते हैं। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। वजह क्या है? मेडिकल साइंस ये कहती है कि माएँ जब उम्मीद से होती हैं, सबसे ज्यादा बच्चे के कान में किसी चीज की आवाज जाती है तो माँ के दिल की धड़कन की आवाज सबसे ज्यादा जाती है। हमारी माएँ जब उम्मीद से होती हैं, यानी माएँ जब हामिला हैं, पेट में बेटा है या बेटी है, ये 24 घंटा मोबाइल हाथ में लेके सीरियल देख रही हैं, कभी पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं, तो कभी कोई गाना सुन रही हैं, तो कभी कोई मूवी देख रही हैं। जब ये पोजीशन होती है, अब 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कहां से कोई बात सुनेगा। लेकिन जब दिल की धड़कन में नबी का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत होगी, कुरान की तिलावत होगी, मैं मानता हूं कि बेटे गौसे आजम तो नहीं पैदा होंगे, लेकिन गौसे आजम के गुलाम तो जरूर पैदा होंगे। दिल की धड़कन में कुरान की तिलावत होगी, बेटियां राबिया बसरिया और राबिया अदविया तो नहीं पैदा होंगी, लेकिन कनीज़े राबिया तो जरूर पैदा होंगी। अब यहीं रुकिए और ठहरिए, आज की मेडिकल साइंस कहती है, लेकिन आओ हम चलते हैं मुस्तफा जाने आलम के घर में, हम चलते हैं मौला अली के घर में, हम चलते हैं ये इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब हजरत अली के घर में। घर अली का है, नबी की बेटी उस घर में है, अली की बीवी है हजरत फातिमा, फातिमातुज़ ज़हरा उम्मीद से हैं। अब 9 महीना हुसैन को पेट में रहना है, लेकिन सुनिए सुनिए, इमाम हुसैन अपनी माँ के पेट में 9 महीना नहीं रहे हैं, बल्कि 6 माह, सिर्फ 6 महीने में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हो गई है। और याद रखिएगा, जो बच्चा 6 माह में पैदा हो, जाके पूछिएगा गायनेकोलॉजिस्ट से, प्रसूति रोग विशेषज्ञ जो औरतें डॉक्टर हैं, यानी जो MBBS की हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो गायन की डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो जेंट्स हो या लेडीज या घर की बूढ़ी औरतों से पूछिए। 6 महीना में बच्चा पैदा हो जाए किसी को, याद रखिएगा वो बच्चा या तो बचपन में इंतकाल कर जाता है या बड़ा होते होते इंतकाल कर जाता है। बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो 6 माह में पैदा हो जाएं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहें और पैदा हो तो जिंदा रहें और लंबी उम्र पाए। मुझे तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम दिखाई देते हैं, वो नबी हैं, अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और एक इमाम हुसैन दिखाई देते हैं, वो भी अपनी माँ के पेट में 6 माह रहे। और याद
یاد رکھنا پیدا ہوتے ہوتے شہید نہیں ہوئے بلکہ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں کربلا کے میدان میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے. تو 6 ماہ میں پیدا ہونا بھی امام حسین کی کرامت ہے, حضرت فاطمہ کی کرامت ہے. اب 6 ماہ ماں کے پیٹ میں حسین ہیں. یاد رکھنا فاطمہ کی نگاہوں میں علی کا سجدہ موجود ہے, فاطمہ کے نگاہوں میں نبی کا سجدہ موجود ہے, نبی کی نماز موجود ہے. اور خود سیدہ فاطمہ کی حالت کیا ہے آج میری مائیں سنیں گی, میری بیٹیاں, میری بہنیں. حضرت فاطمہ کی حالت یہ ہے کہ نماز کے لیے عشاء کے بعد کھڑی ہو جاتی ہیں, پوری رات گزر جاتی ہے. حضرت فاطمہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا, سجدے سے سر اٹھا کے, ادھر بلال اذان دے دیتے ہیں مسجد نبوی میں, سجدے سے سر اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا, تیری راتیں ختم ہو جاتی ہیں. میری بیٹی, میری مائیں, میری بہنیں بھی سنیں کہ ہماری بیٹی کتنا قرآن پڑھ رہی ہے, میری ماں کیا پڑھ رہی ہے, میری بہن کتنا پڑھ رہی ہے. حضرت فاطمہ پوری رات گزر جائے, حضرت فاطمہ کا پہلا سجدہ ختم نہیں ہوتا, ایک سجدے میں پوری رات گزر گئی. کبھی کبھی پوری رات قرآن کی تلاوت, کبھی کبھی پوری رات اپنے بابا پہ درود پڑھ رہی ہیں حضرت فاطمہ. اب 6 ماہ کے بعد جب حسین پیدا ہوئے ہیں تو مجھے کہنے دو کہ 6 مہینہ کے بعد امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ سید الشہداء شہید اعظم حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے. حسین صرف, میرے جملے پہ توجہ رہے, حسین تنہا فقط صرف حضرت فاطمہ کا بیٹا بن کے, علی کا بیٹا بن کے پیدا نہیں ہوئے بلکہ نبی کی نماز بن کر آئے ہیں, نبی کا سجدہ بن کر آئے ہیں, نبی کی تلاوت بن کر آئے ہیں, علی کی تلاوت بن کر آئے ہیں. اور کربلا کے میدان میں اسلامک لا کے سچے محافظ اور پاسبان بن کے حسین تشریف لائے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین. اب علامہ غلام غوث قادری صاحب ذرا غور